A very good morning to one and all, class 11. Welcome to your TSN English class. Today we'll discuss the chapter number 7. This one is the last chapter from your book Snapshot. And this chapter 7, that is Birth, written by Archibald Joseph Cronin. That means A.J. Cronin. Let's read about the author here. Archibald, the author A.J. Cronin. So Archibald Joseph Cronin was born on 19 July 1896 in Carros near Glasgow on the west coast of Scotland to a Scottish mother and Irish father. So Archibald Joseph या A.J. Cronin का बर्थ कब हुआ था? 19 जुलाई को 1896 को. इनकी मदर जो है स्कॉटलैंड की थी, जो कि एक स्कॉटिश लेडी थी, एंड द फादर इज़ लाइक आयरिश मैन. Cronin graduated with honors from medical school at the end of the First World War in 1919. क्रोनिन जो है हमारे जो राइटर हैं चैप्टर के, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कब ख़त्म करी है? 1919 में, at the end of the First World War. In the mining towns of Wales, he saw the human spirit fighting poverty and hardship. In his London practice, he encountered the spoiled, neurotic, rich, happy to spend money like water. And after that, he saw human spirit fighting poverty and hardship. उन्होंने देखा किस तरह से लोग जो हैं they are fighting for poverty and there are lots of hardship in their lives. And in London, in his London practice, he encountered spoiled, neurotic, rich, happy to spend money like water. जब वो लंदन गए तो वो ऐसे हो गए थे. Now move on to about Archibald Joseph. So Archibald Joseph Cronin, and he died in 1981. He is a Scottish novelist and a physician. His best known novel was The Citadel. The National Book Award US Favorite Novelist 1937 for The Citadel. इन्हें The Citadel के लिए फेवरेट नॉवलिस्ट का भी अवार्ड मिल रखा है. So move on to next. So this chapter is based upon, as you can see the name of the chapter, that is birth. So the chapter is based on, obviously हमें एक थोड़ा idea हो जाता है birth. So then he asked for a child. The nurse felt no pulse and so she kept the baby amidst old newspaper and he was pulled out of the newspaper. ऐसी एक चीज़ हमारे चैप्टर में भी आएगी, that how the author tried to experience us these things. So basically in this chapter, this is the excerpt from The Citadel, Andrew Mason and newly out of the medical school. So Andrew Mason के बारे में ये चैप्टर है जो कि स्कूल से नए नए आए हैं, and he has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Ballynley. और जो ये हैं एंड्रयू मेंसन, इन्होंने अपनी असिस्टेंट की जो प्रैक्टिस है वो डॉक्टर जो है असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड, तो डॉक्टर एडवर्ड पेज के असिस्टेंट के तौर पर वर्क कर रहे हैं. एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन. और ये दिन उस दिन की सिचुएशन है जब वो क्रिस्टीन के साथ एक डिसअपॉइंट इवनिंग बिताकर आ रहे थे. द गर्ल ही लव्स ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन. और जिस गर्ल से वो प्यार करते थे वो गर्ल आज किससे मिली है? Joe Morgan. And Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. और जो और उनकी वाइफ जो है वो मैरिड हैं और आफ्टर 20 years जो की वाइफ जो है एक्सपेक्टेंट है एंड उनके फर्स्ट चाइल्ड होने वाला है. लेट्स रीड. Though it was nearly midnight when Andrew reached Bryangover, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. At the sight of him, the burly driller face expressed relief. So here in this chapter, the first paragraph here. So first of all, I would like to tell you about the meanings. Some of the meanings are there. So here burly means जो कि हट्टा कट्टा होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि नेक्स्ट वन इज ड्रिलर, छेद करने वाला, जो ड्रिलिंग मशीन होती है, दैट इज स्टाउट इज योर स्ट्रॉन्ग, फेंटली योर सम जो कि कुछ चीज़ें जो होती है फेंट हो जाती है. फ्रेट योर मीन्स चिड़ना एंड स्नैच मीन्स छीनना एंड लथार्जी इज समथिंग हु इज लेजी. सो दो इट वॉज नियरली मिड नाइट व्हेन एंड्रयू रीच ब्रायनगोवर. ये मिडनाइट का टाइम था जब एंड्रयू जो है आधी रात को ब्रायनगोवर पहुँचे. एंड
ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, और उसने वहाँ जाके देखा कि जो मॉर्गन उनके लिए वेट कर रहे हैं. वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस. अब एंट्रेंस बताई जा रही है कि किस तरह धीरे धीरे चलते हुए जो सर्जरी रूम है वहाँ से वो उन्होंने अपने घर के जो गार्डन है उसमें आए हैं. एंड आफ्टर दैट एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर फेस्ड एक्सप्रेस्ड रिलीफ. और जैसे ही वो आए उन्हें देख या उनकी चेहरा देखते ही जो वो थे बर्ली हियर मीन्स जो एंड यहाँ एंड्रयू जो है वो डॉक्टर हैं एंड जो मॉर्गन, तो जो मॉर्गन के लिए बताया कि जो मॉर्गन कैसा है, एक मोटे से या फैटी से पर्सन है. सो हियर ड्रिलर का वर्क करते, तो उनके चेहरे पे एक ऐसे ही उन्हें देखकर डॉक्टर एंड्रयू को देख के वो बहुत ही रिलीफ फील करते हैं. डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू. आई बिन बैक एंड फॉरवर्ड योर दिस लास्ट आवर. द मिस अस वॉन्ट्स ये बिफोर टाइम टू. सो अब जो है जो मॉर्गन वो डॉक्टर को देखते ही बहुत ही रिलीफ फील करते हैं. दैट इज़ वाई ही सेइंग दैट कि ओ डॉक्टर, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई. आई एम ग्लैड टू सी यू एंड आई बिन बैक एंड फॉरवर्ड योर दिस लास्ट आवर. और मैं लास्ट आवर से बैक एंड फॉरवर्ड मीन्स मैं आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ. सो दिस मिस अस, और इस मिस अस वॉन्ट ये योर मीन्स माई मिस्ट्रेस, दैट मीन्स उनकी जो वाइफ है उनको इनकी ज़रूरत है. आफ्टर दैट वॉट हैपन बिफोर टाइम टू, वो भी टाइम से पहले. दैट मीन्स दिस इज़ द टाइम ऑफ डिलीवरी. तो डिलीवरी में दर इज़ नो पर्टिकुलर टाइम, यू ऑल नो दैट. सो दैट इज़ वाई ही सेइंग दैट कि उनकी वाइफ का जो डिलीवरी टाइम था दैट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड शी नीड्स डॉक्टर बिफोर दैट time. So let's read the next paragraph here. Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. He went into the house for his bag, and then together they set out for number 12 Balina Terrace. उसके बाद क्या होता है? Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs. जब जो एंड्रयू हैं, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, वो अपनी ही बातों के बीच में या अपने ही थॉट्स के बीच में जैसे उन्हें अचानक से किसी ने वहाँ से वेकअप कर दिया. मॉर्गन को उन्होंने कहा, जो डॉक्टर जो मॉर्गन है उन्होंने उन्हें कहा दैट यू हैव टू वेट हियर एंड आफ्टर दैट आई विल जॉइन यू. एंड आफ्टर दैट जो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन है उन्होंने अपना बैग लेने के लिए वो घर के अंदर गए एंड फिर दोनों ने एक साथ 12 नंबर बेलेना टेरेस की तरफ वो लोग आगे निकले. द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री यूजुअली सो परसेप्टिव. Andrew now felt dull and listless. He had no promotion that this night would prove unusual, sit less, and that it would influence his whole future in Ballinley. So here students, what was going on कि एंड्रयू मेंसन जो है वो डॉक्टर हैं और वो जो मॉर्गन की वाइफ को के लिए रेडी हैं, उनको उनकी को जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए रेडी हैं. एंड आफ्टर दैट जो रात है, अब वो लोग आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया है उन्होंने. और रात में किस तरीके का वेदर है, दैट द वेदर इज़ वेरी कोल्ड एंड द वेदर इज़ कोल्ड एंड वेरी डीप क्वाइट मिस्ट्री काइंड ऑफ. ऐसे लग रहा है जैसे शांत रहस्य से बहुत ज़्यादा भर गई है रात. एंड एंड्रयू जो है वो ही इज़ इन डीप क्वाइट मिस्ट्री, मतलब वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं. यूजुअली सो परसेप्टिव, और यूजुअली अक्सर वो ऐसे ही यूजुअली जो आदमी बहुत ज़्यादा अटेंटिव या बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है वो आज थोड़ा सा ऐसा है जैसे कि वो that he is not in that active position, he is dull and listless. आज उसे कुछ नहीं पता, वो dull और listless है. And he had no premonition that this night call would prove unusual. और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये रात में जो कॉल आया है डॉक्टर को मेडिकल ट्रीटमेंट का, ये कॉल जो है वो क्या उसकी लाइफ में आगे चेंजेस ला सकता है. एंड आफ्टर दैट स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज
होल फ्यूचर इन बेलनले। और उसके बाद भी इससे भी ज़्यादा बात ये कह रहे हैं कि बेलनलेली में ये उनका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उनका। नेक्स्ट, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट। द टू men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. जो दोनों लोग हैं, द टू men walked in silence, अब दोनों लोग आपस में बिल्कुल साइलेंटली वॉक करते हैं 12 नंबर, जब तक कि वो रूम नंबर 12 के बाहर नहीं पहुंच जाते। एंड आफ्टर दैट द जो ड्रू अप शॉर्ट, और जो वहाँ जाकर रुक जाते हैं। नेक्स्ट, I'll not come in, he said, and his voice showed signs of strains. But man, I'll no yell do well for us. अब वो कह रहे हैं कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। He said and his voice showed signs of strains. और जैसे वो ये कहते हैं जो मॉर्गन, उनकी वॉइस में स्ट्रेस के साइन नज़र आ रहे हैं। So, but man, I know ye yell do well for us. तो वो कह रहे हैं कि आई नो मैन कि तुम मेरे लिए अच्छा ही करोगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज योर पेज नंबर 66 here. Inside, a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. Here Mrs. Morgan mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. So here जब जो मॉर्गन कहते हैं कि आई एम नॉट इन कंडीशन कि मैं इस रूम में जहाँ पे सर्जरी होने वाली है, जहाँ पे भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाना है उनकी वाइफ को, वहाँ पे वो खड़े रहें। सो इसीलिए वो मना कर देते हैं। ही रिफ्यूज टू से दैट आई एम नॉट कमिंग इन साइड दैट रूम। सो इन साइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। क्या कह रहा है कि एक नैरो से स्टेयर वाले एरिया पे, नैरो से सीढ़ियों वाले में छोटे से एक बेडरूम की तरफ जाती हैं वो नैरो स्टेयर्स। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, वो रूम जो है क्लीन है बट बहुत ही ज़्यादा पुअरली फर्निश्ड है। दैट मीन्स द फर्नीचर इज़ नॉट प्रॉपर ओवर देयर एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और वहाँ लाइट्स नहीं हैं और सिर्फ एक ऑयल लैम्प द्वारा वहाँ पे रोशनी है। हियर मिसेस मॉर्गन मदर, अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन ऑफ नियरली 70, वहाँ पे मिसेस मॉर्गन की मदर जो हैं वो हैं जो कि एक 70-year old women है एंड शी इज़ हैविंग ग्रे हेयर एंड द स्टाउट, एंड स्टाउट मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं वो। एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट वॉचिंग, और अंदर एक बहुत ही बूढ़ी सी मिडवाइफ, दैट मीन्स एक दाइमा काइंड ऑफ अ लेडी जो पुराने समय में मेडिकल ट्रीटमेंट्स किया करती थी, वो वहाँ वेट कर रही थी। वॉचिंग एंड्रू एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, और वो जैसे ही एंड्रू रूम में मूव करते हैं वो एंड्रू के एक्सप्रेशंस देखती हैं। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैच, said the former quickly after a few moments, और वो डॉक्टर को क्या कहती हैं, let me make you a cup of tea, कि लो डॉक्टर मैं आपके लिए एक कप चाय बना के लाती हूँ, I'll prepare a cup of tea for you, and said the former quickly after a few moments, और ऐसा former कुछ टाइम के बाद ही कहने लगते हैं। Andrew smiled faintly. He saw that the old women, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. And Andrew जो है वो थोड़ा सा धीरे से, स्माइल्ड फेंटली मीन्स उसकी स्माइल बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रही है, इस तरह वो हंसे। एंड आफ्टर दैट ही सॉ दैट द ओल्ड वुमेन, और उन्होंने देखा कि वो जो ओल्ड वुमेन है, वाइस इन एक्सपीरियंस, जिस लेडी को इतना एक्सपीरियंस है, वाइस इन एक्सपीरियंस हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कि अपने एक्सपीरियंस की या उन्हें इतना एक्सपीरियंस या अनुभव की धनी लेडी हैं, रियलाइज दैट देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट, और उसने रियलाइज़ किया कि शायद कुछ इंतज़ार का और समय होगा, एंड ही वुड लीव द केस, शायद वो ये केस वॉज अफ्रेड दैट ही वुड लीव द केस, और वो साथ साथ डर गई कि कहीं वो ये इस केस को छोड़कर ना चला जाए, और ये कहते हुए वह बाद में आएगा, और शायद वो ये कह दे दैट ही विल कम और ही वुड रिटर्न लेटर। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। अब योर जो डॉक्टर एंड्रू मेंसन है वो लेडी की सिचुएशन देख के कहते हैं,
Don't fret, that means there's no need to worry. मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ. Down in the kitchen, he drank the tea which she gave him. Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. He knew too that the case here would demand all his attention. A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over. And students, here what was going on here, that in this paragraph here, the Andrew Manson and his family members, they all are like एंड्रयू मेंसन जब उनके घर जाते हैं डॉक्टर, जब डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जब जो मॉर्गन के घर जाते हैं तो वो उनकी वाइफ की सिचुएशन देखते हैं. आफ्टर सीइंग दैट सिचुएशन वो सभी को वहाँ पे संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं दैट आई एम नॉट लीविंग दिस प्लेस. And after that, down in the kitchen, he drank the tea which she gave him. उसके बाद उन्होंने किचन में वो टी पी जो उनके लिए दाई माँ ने प्रिपेयर कर दी. Overwrought as he was, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे. Overwrought means डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो है, ऑब्वियसली वो डॉक्टर है, अपनी जॉब से आए थे तो वो बहुत ज़्यादा थके हुए नहीं. ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इवन ही वेंट होम. और अगर वो घर भी चले जाते तो शायद वो अपनी नींद को नहीं ले पाते, इवन 1 आवर स्लीप भी वो प्रॉपर नहीं ले पाते. सो he knew he could not snatch even an hour of sleep if he went home. He knew too that the case here would demand all his attention. And that Dr. Andrew Manson को ये भी पता था कि whatever the case is here, that case demands his attention over here. A queer lethargy of spirit came upon him. और उसीलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी था. बट स्टिल वो बिकॉज वो थोड़ा अपसेट थे उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसे लेकर. दैट इज़ वाई अभी भी उनके माइंड में जो है कहीं ना कहीं लेजीनेस से फिल हुआ था उनका माइंड. नेक्स्ट, that lethargy was filled in his mind and he felt a bit lazy over there. So he decided to remain until everything was over. So he said that until everything was over, or जब तक यहाँ पर सब कुछ सही नहीं हो जाता, आई स्टे ओवर देयर एंड आई विल रिमेन ओवर देयर. ऐसा डॉक्टर एंड्रयू मेंसन वहाँ पे मेंशन करते हैं. सो बाय दिस थिंग यू ऑलरेडी गेट एन आइडिया स्टूडेंट्स दैट किस तरह जो है डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो मॉर्गन की हेल्प करने को तैयार है, जबकि उन्हें ये कुछ हद तक पता है दैट हिज गर्लफ्रेंड इज़ नॉट डूइंग दैट प्रॉपरली एंड ही इज़ टायर्ड, बट स्टिल ही इज़ रेडी टू हेल्प एंड ही इज़ डूइंग हिज वर्क well. Thank you. We'll continue the next part of our video in next one.